All right, so good evening, all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So this is part 3 of topic number 7. We are currently doing back to basics revisions, quick revision series for political science optional and specifically paper 2 and section 1. In that we are doing topic 7. In the first part we had seen the Cold War era and the evolution of rivalry between Russia and USA. In the second part, we saw how nuclear deterrence and nuclear related aspects of the political science. In this part, we will see how USA became the hegemon and what were the impacts of it and how scholars see the hegemony part of it. ठीक है? Satyam sir, please start. Okay. US hegemony. US hegemony up till First World War. USA focused on its internal developments. USA did not involve itself in world affairs, but USA continued integration with world economy. USA is a self-sufficient state. USA has all the features of a hegemon. Practically speaking, USA is an island. 1. Canada is not a threat to USA. There are lakes and forests in Canada which prevent the possibility of any attack from Canada. Second, Canadian Arctic border is like a shield for USA. Similarly, Mexico acted as a buffer zone, and no South American country can be expected to challenge US hegemony. The potential challenger can be Brazil, but it can do so only when Brazil, Bolivia, Peru, and other northern countries are integrated. 3. USA controls the two oceans, Pacific as well as Atlantic. USA has largest number of ports. Both the sea not only protect USA from external threats, it provides USA the medium to trade with the world. In comparison to USA, Russia is almost landlocked. क्योंकि उसके सारे जो मेजर पोर्ट्स है वो फ्रोजन ही रहते हैं नॉर्दर्न. It is the protection of the seas that USA could develop a vibrant democracy which itself build its cultural power, which itself is a source of rational strategic thinking. The security of USA is itself a factor that USA can continue to have free market economy. There is no need to control. USA has the most well-developed inland waterways. It makes the transportation cost extremely cheap. It makes USA a favorite destination for investment from around the world. US is also a favorite market for investment because of the stability, security, and fundamentally strong features of US economy. USA is located in the ideal temperate zone. Hence, in terms of food security, USA is always a secure country. USA's self-image is land manifest destiny. USA considers that it has the divine mission to expand the institutions of liberal democracy. Thomas Paine was the view that the American Revolution gives indication of the God to expand the virtues of the new world to the old world. यहाँ तक कोई समराइज करना चाहेगा? हाँ, वही बता रहा है कि यूएसए कैसे नेचुरल हेजमन टाइप का है. थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, मैं कोर बोल देता हूँ. हाँ, वही बोल रहा है यार कि वो सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि कनाडा के पास इतना है नहीं और अटैक नहीं कर सकता कनाडा. और कनाडा का जो आर्कटिक वाला एरिया वो यूएस तक आ नहीं पाता क्योंकि कनाडा बीच में आ जाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कि ब्राजील भी चैलेंज नहीं कर सकता बिकॉज ब्राजील इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. और इंटीग्रेशन का भी साउथ अमेरिका में हो नहीं पाया और यूएसए ने होने भी नहीं दिया. एक रीजन ये भी है. और सबसे बड़ा ये क्या वो है कि दोनों तरफ ओशन है अपने यूएस के, पैसिफिक भी अटलांटिक को, तो सिक्योरिटी भी देता है और इसको ट्रेड में एज भी देता है कंपेयर टू अदर राइवल लाइक रशिया स्पेशली. ठीक है. खुद को ये लिबरल डेमोक्रेसी का बादशाह बोलता है पर तो अपने इंटरेस्ट से खेलता रहता है डेमोक्रेसी के साथ. और वाटरवेज इसका बड़ा वो है, मतलब कि ये भी नेचुरल एडवांटेज है. जितनी भी रिवर देख लो आप, मिसिसिपी वाली 5 लेक देख लो,
तो उन्हें इनलैंड वाटर वे बड़ा अच्छा बनाया, तो वो एक नेचुरल एडवांटेज है इसके पास। और आइडियल टेम्परेचर है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, तो फूड सिक्योरिटी वगैरह सब रहता है। प्रेरी पेम्पा जो हमने देखे थे इधर, वही फिर बाकी अमेरिकन रेवोल्यूशन स्कॉलर ने अपना रोल निभाया है, थॉमस पेन ने जो बोला है अमेरिकन रेवोल्यूशन वाली बात। और यूएसए सेल्फ इमेज लैंड ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, तो डिवाइन मिशन की लिबरल डेमोक्रेसी से ये लोग करते हैं, तो इट्स हैव एवरी फीचर दैट हेजमन शुड हैव, तो उसको नेचुरल एडवांटेज रहता है वही कंपैरिजन में। ओके, बढ़िया, थैंक यू नवीन भाई। हाउ यूएसए हैज बिल्ट इट्स हेजेमनी, तो यूएसए ने कैसे बिल्ड किया हेजेमनी को? Besides the internal strengths of USA could take the advantage of the crisis in the world to build its hegemony. First, USA entered in the world wars when two parties completely exhausted each other so that the victory can be easily achieved. Second, USA took the advantage of the situation prevailing in the Europe. European situations allowed USA to make dollar the global currency. How? USA provided dollar aid for reconstruction and development. USA emerged as a major market for European exports, which also made dollar global currency. At that time, no other country could offer the market to the world. USA is the largest consumerist nation in the world. It has adverse balance of payment with all the countries, but it does not affect because the dollars which USA pays comes back. USA, though Bretton Woods system made dollar the global currency. USA through Bretton Woods system made dollar the global currency. The first monetary system as per the Bretton Woods system, the price of the dollar was pegged against the gold and the price of all currencies was pegged against dollar. Since Europeans lacked cash, they exchanged the gold for dollar. Thus USA came to acquire one of the largest reserves of the gold of the world. USA has also built its hegemony by securing its economic interests through its powerful navy. Second World War gave an opportunity to USA to establish a naval and military bases around the world. Fourth, though through treaty alliances. NATO, it checked Russia's outlet in Atlantic. Second, Southeast Asia Treaty Organization Association (SEATO) or Malina Pact to check Russia-China in Asia-Pacific. Middle East Defense Organization CENTO. ठीक है, तो यहाँ तक कोई समराइज करना चाहेगा यूएसए ने कैसे कैसे अपनी हेजेमनी? हाँ, इसमें ये क्या करते हैं, बताते हैं कि जो यूएसए था वो क्या किया कि जब वर्ल्ड वॉर होने लगा तो उसके एकदम एंड में एंट्री किया, जिससे उसको ज्यादा कुछ हार्म ना हो और आराम से एट द एंड मोमेंट वो एंट्री मार के जीत भी जाए और ग्लोबल फेम भी एक तरह से पाले। और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की सिचुएशन था, पूरा यूरोप ब्रेकडाउन में था, तो उसके कारण क्या हुआ था, जब हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी, उसके कारण वो क्या किया, यूएस सबको डॉलर एड प्रोवाइड किया पूरे यूरोप को। उसके कारण क्या हुआ कि और जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके पास उस समय कैश नहीं था, तो कैश के बदलों में उन्होंने गोल्ड दिया। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने, यूएसए ने क्या किया, यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमरिस्ट नेशन है, तो फिर वो अफोर्ड कर सकता है कि बाकी सारी कंट्रीज के साथ नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी हो, क्योंकि ऑल्दो वो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है बट क्योंकि डॉलर उसी की करेंसी है तो घूम फिर के उसी के पास आ जाता है। और उसका जो वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दी थी, तो उसी के कारण ये सब हो पाया था। और सर उसके बाद हाँ, और उसके बाद यूएस की बहुत अच्छी पावरफुल नेवी थी और उसकी इसके पहले हम लोग लोकेशन तो देखे ही थे कैसे कैसे बिल्ड कर सकता है कि दोनों तरफ से ओशियन से लैंड लॉक्ड है, ओशियन से घिरा हुआ है और फिर अंदर वाटरवे भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसके अलावा फिर डिफेंस और डिफेंस ट्रीटी अलायंसेज इन्होंने की, जैसे नेटो, सीटो, सेंटो, ये सब करके उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली अपनी हेजेमनी। ओके, थैंक यू। अब है मैकेंडर एंड महान डिबेट। यूएसए की हेजेमनी पे ये जो थिंकर्स है अल्फ्रेड टी महान एंड हैल्फोर्ड मैकेंडर, इनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं।
देखते हैं हम। अल्फ्रेड टी महान ने कहा था, यूएसए's foreign policy is guided by geopolitics. One of the earliest influence is of Alfred T. Mahan. The influence of sea power upon history 1890 में उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि the country which controls the ocean can control the world. He also held that the Indian Ocean is a key to 7 seas. He held that the countries should look at the oceans as an opportunity rather than liability. However, he was against USA following the isolationist policy. He even believed that the democracies are unable to think strategically. He was extremely critical of liberal utopianism. He suggested that USA should actively develop offensive marine power. It will constrain the expansion of any land power on sea, and it will also allow USA to expand its power. फिर हाल्फोर्ड मैकेंडर के ओपिनियन। Mackinder has challenged the theory of Alfred T. Mahan and held that ultimately the world will come under the hegemony of land power. The source of sea power is also land. Hence, the land power getting access to sea can end USA's hegemony. He called Europe, Asia, North Africa together as a world island. It has more human and material resources than rest of the world together. Russia, Iran, Central Asia, Mongolia, Tibet, Eastern Europe constitute the heartland of the world island. He called USA, Australia, Britain, Japan as an offshore island or continent. The advantage of the sea power will go once land-based transport and communication links consolidate. He also believed that the democracies are not linked to think strategically. He warned USA about the rise of authoritarian powers in the heartland. That is, for example, communism in Russia, fascism in Germany, authoritarianism in Iran, communism in China, all needs to be contained. तो इन दोनों के व्यूज कोई बताना चाहेगा? सर एक बार ना अगला वाला ही पढ़ लो क्योंकि वो भी इसी से लिंक्ड है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। Contribution of Spikeman. To Mackinder's theory, he added that the concept of rimland states, the amphibian states, and in case these states neither purely naval approach nor land-based approach will work. Rimland includes France, Germany, Middle East, India, China. What should be USA's approach? Proactive containment of the rise of continental power or the possibility of the integration of Eurasia. What is happening now? As suggested by Robert T. Kaplan, instead of divisions, Eurasia is cohering. वॉइस मेरे को ही ब्रेक हो रहा है कि सबको हो रहा है ब्रेक? मेरा ब्रेक हो रहा है क्या? आ रही है मेरे को सही। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। What should be USA's approach? Proactive containment of the rise of continental power or possibility of integration of Eurasia. What is happening now? As suggested by Robert T. Kaplan, instead of divisions, Eurasia is cohering, Eurasian integration. OBOR is going to integrate Eurasia. China is also following the policies of USA, like establishing global financial center around China. It is the recent book, Marco Polo's World. He reminds USA of 13th century Mongol Empire, the power of Central Asia, which established its influence in Europe. Europeans or Atlantic century is over. Now Asian power will dominate. There was a time when Western European states could dominate the countries of Asia, but now history is going to repeat. Which states are challenger to US hegemony? Russia, China and Iran. If सर any बस Western... Okay. आई थिंक अगला टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो तीन अलग अलग व्यू पॉइंट है। नहीं ठीक है, वो अगला टॉपिक आएगा। वो इसमें देखो तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं कि जो यूएसए की हेजमनी है या फिर कोई भी स्टेट हेजमन कैसे बनता है उसके बारे में। तो आई थिंक अल्फ्रेड टी महान का जो कहना है वो कहता है की पावर होगी, मतलब जो भी ओशन कंट्रोल करेगा ही विल बिकम द लीडर या फिर ही विल बिकम द हेजमन।
जिसके पास लैंड की पावर है वो हेजेमन ऐसा बोलता है मैकेंडर। एंड स्पाइकमैन हैज ट्राइड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स, मतलब दोनों दोनों भी जरूरी है, इसलिए उसने रेमलैंड थ्योरी दिया है। चलो अभी वन बाय वन करते हैं ना। कहाँ वाला कौन समराइज करेगा? स्टॉइक, यू वांट टू डू इट? भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 2 मिनट में आगे का करता हूँ मैं। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। उमेश सर? उमेश सर, विल यू प्लीज समराइज महान का? हाँ सर। महान सर दो तरीके की डिबेट थी। मैकेंजर कह रहे थे कि मतलब लैंड पावर जो ग्रैब करेगा वो प्रिवेल करेगा, उसकी पावर प्रिवेल होगी। और जो महान को याद मैंने ऐसे कर दिया सर, महान समुद्र महान है, तो महान से ऐसे समुद्र महान याद हो जाएगा कि समुद्र, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है सर, महान और इनमें मैकेंजर में, क्योंकि दोनों नाम एक साथ आते हैं। तो महान को समुद्र महान से ऐसे कर सकते हैं कि समंदर पे जो मतलब जो सी पावर प्रिवेल करेगा वो उसकी पावर प्रिवेल होगी, सी पावर जिसके पास होगी, जो समुद्र पे कंट्रोल करेगा। तो महान ने इसी को लेके मतलब यूएस को कहा था कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये मतलब सी पे कंट्रोल करने के लिए इन्हें मतलब परसू करना चाहिए, और अपनी सी पावर बढ़ानी चाहिए, अपनी नेवी को बढ़ाना चाहिए। इन्होंने इसे जो 3 पॉइंट में बताया गया उसमें है कि जो कंट्रीज समंदर पे कंट्रोल करेगी वही और वो मतलब वर्ल्ड पे सुपर पावर बनने के उभरेगी। उन्होंने कहा कि हमें मतलब समंदर को एज ए लाइबिलिटी नहीं लेना चाहिए, एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और ये कहा कि यूएसए को मतलब जैसे उन्होंने कहा आइसोलेशन, मतलब यूएसए की जो ज्योग्राफी है वो उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आइसोलेट करती है, तो उसे एज ए आइसोलेशनिस्ट नहीं, पॉलिसी को ना लेके उसे अपना मतलब स्ट्रेटेजिकली मतलब सबसे कनेक्ट होके रहना चाहिए। उसके बाद मैकेंजर ने सर एक सेकेंड, मैं उमेश सर जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अल्फ्रेड टी महान जो है उनका एक बुक है द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, 1890 का बुक है। उन्होंने कहा है कि द वन हु कंट्रोल्स ओशियंस विल कंट्रोल द वर्ल्ड, और इंडियन ओशन इज द की टू 7 सीज, ये बोला है उन्होंने। एंड यूएसए को बोला है कि आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी नहीं करना चाहिए उन्होंने। ठीक है, और वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी शुड थिंक स्ट्रेटेजिकली, एंड ही क्रिटिसाइज लिबरल यूटोपियनिज्म। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं यार। यूएसए शुड एक्टिवली डेवलप ऑफेंसिव मरीन पावर। ठीक ये है, लिबरल तो मतलब वही यूटोपियनिज्म क्या मैरिटाइम होता के ऊपर ज्यादा फोकस था इनका। सर है? वही होगा ना लिबरल कि लिबरलिज्म बेस्ट यूटोपियनिज्म। है वर्ल्ड में, वो सब कुछ, हाँ हाँ हाँ। डेमोक्रेसी प्रमोशन वगैरह। ओके। मतलब हम ही बेस्ट है, बाकी सब कुछ नहीं है, हमारा ही पॉलिसी सब अच्छा है, वो नहीं था मतलब वेस्ट हैज वॉन, ऐसा कुछ तो डिबेट भी है ना एक, हिस्ट्री हैज एंडेड, हाँ फ्रांसिस फुकुयामा वाला। एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, इसके बाद है फिर हल्फर्ड मैकेंडर है। मैकेंडर ने चैलेंज करा है। हेलो हेलो दृश्यम सर। हाँ यू आर ऑडिबल। दृश्यम सर आप बोल रहे हैं क्या? दृश्यम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ मैं समराइज कर रहा था मैकेंडर को। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ अब आ रहा है। अच्छा, कोई और करो प्लीज। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ अब आ रहा है भाई। मैकेंडर करूँ क्या मैं? हाँ कर दो स्टॉनिक। स्टॉइक तो सर कर दीजिए प्लीज। मैकेंडर ने अल्फ्रेड टी महान की ये
ओशंस को जो कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, ये थ्योरी को चैलेंज किया था और इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड पावर बताया था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि सोर्स ऑफ सी पावर इज ऑल्सो लैंड, सो लैंड पावर गेटिंग एक्सेस टू सी कैन एंड यूएसएस हेजेमनी। और उन्होंने यूरोप, एशिया और नॉर्थ अफ्रीका जो एक कंटिन्यूस मतलब रिमलैंड टाइप है उसको वर्ल्ड आइलैंड उसको हेलो हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, तो ये बोला था कि यहाँ पर ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और उन्होंने इसका हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी दिया था कि एशिया, मंगोलिया, तिब्बत कंस्टिट्यूट हार्टलैंड ऑफ वर्ल्ड आइलैंड। तो उन्होंने ये जो कॉन्टिग्यूअस लैंड मतलब हार्टलैंड जो कहा था उससे अलग जियोग्राफिकली जो पड़ता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इसको ऑफशोर आइलैंड्स बोला था। और एडवांटेज ऑफ सी पावर विल गो वंस लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स कंसोलिडेट, ये भी बोला था। और डेमोक्रेसी को इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट इंक्लाइन टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। और अथॉरिटेरियन पावर्स हार्टलैंड में जो राइज हो रही है उसके खिलाफ भी उन्होंने यूएसए को वार्न किया था, जैसे कि कम्युनिज्म, फैसिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म, ये सब जो आ रहे हैं इनको कंटेन करना पड़ेगा। कोई इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई कर सकता है क्या? उन्होंने अब डेमोक्रेसी को भी बोल दिया कि स्ट्रेटेजिकली नहीं करते वो थिंग, और अथॉरिटेरियन लीडर्स को भी बोल दिया कि ये भी ठीक नहीं है। तो मतलब उनका कहने का मतलब पर्पस क्या था, कुछ मैं समझ नहीं उनका पाया। एक्चुअली कैसा था कि मैकेंडर जो अभी तक जो चल रहा था सी पावर वाला जो थियरी था, जो यूएसए की तरफ थोड़ा बायस था कि सिंस यूएसए ने सीज पे कब्जा कर रखा है, और वो उसी बेसिस पे हिस्टोरिकली भी वैसे ही सब एग्जांपल्स लाके वो थियरी को प्रेजेंट किया जा रहा था। बट फिर ये काउंटर आया मैकेंडर का कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप सीज पे कंट्रोल करोगे तो आप पूरा कंट्रोल करोगे। और इसका हमको ये थोड़ा चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके सिल्क रोड इनिशिएटिव है, ये सब अभी जो और अलग अलग कंट्रीज में जो अभी गैस पाइपलाइंस का जो ये चल रहा है, उनका अकॉर्ड्स चल रहा है, एंड जो रेलवे लाइंस बिछाई जा रही है, तो इसमें ये दिखाई देता है कि यूरेशिया का जो पूरा कंट्रोल है रिसोर्सेस और ये सब इन सब चीजों से, तो चाइना भी अपना जो लैंड बेस्ड, वो चाइना इस मॉडल पे बिलीव करता है, मैकेंडर जो बोल रहा है उसके, कि आप लैंड को पूरा कंट्रोल कर लो तो आप सुपर पावर बन जाते हो। तो वो उनका एक ये तरीका है। और वो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में क्या उसका वही exactly डेमोक्रेसी कोई ये नहीं होता है कि आप मतलब, ये यूएसए का हमेशा फॉल्ट लाइन रहा है कि वो हमेशा हर जगह डेमोक्रेसी चिपकाना चाहता है ताकि वो ये बता सके कि डेमोक्रेसी रहेगा तो सब, ये लिबरल स्टैंड पॉइंट है ये, कि डेमोक्रेसी सब जगह रहेगा तो ये ऐसे ही मतलब वर्ल्ड चलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हर कंट्री अपने बारे में सोचता है, और जैसे आज अभी हम देख रहे हैं रशिया और चाइना एक साइड है, इवन जर्मनी भी जो है वो अपना ही सोच रहा है, उसने भी रशिया के साथ टोटली ऐसा कोई ये नहीं किया, अपना गैस पाइपलाइन चालू कर रखा है। तो हर कंट्री में अपना अपना एक डिक्टेटरशिप आता रहेगा, एंड वो ये जो सी पावर, नेवल पावर वाला जो थियरी है, स्पेशली ये जो आइलैंड, बड़ा आइलैंड जो इन्होंने बोला है, इसको चैलेंज करता रहेगा। ओके, थैंक यू। स्पाइकमैन को कोई समराइज करना चाहेगा? नवीन सर, आप कर रहे हैं कि मैं करूं? सर आप कर दो, मेरे को थोड़ा कम समझ आया ये वाला स्पाइक वाला। ठीक है। तो देखो, स्पाइकमैन जो है ना, बेसिकली वो दोनों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करता है। जो मैकेंडर थे जो लैंड वाले थे एंड महान थे वो समुद्र वाले थे,
दोनों का भी कॉम्बिनेशन करता है। तो वो बोलते हैं कि भाई कंसेप्ट दिया उन्होंने रिम लैंड स्टेट्स का, ठीक है। तो मतलब वो बोलते हैं कि यार स्टेट्स जो है ना, दे शुड नॉट टेक ओनली नेवल अप्रोच और ओनली लैंड बेस्ड अप्रोच, दोनों का भी मिक्सचर चाहिए। तो उन्होंने एक रिमलैंड कौन कौन होता है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, इंडिया, चाइना, इन कंट्रीज को बोला रिमलैंड कंट्रीज। उन्होंने बोला कि यूएसए जो है ना, दे शुड टेक प्रोएक्टिव कंटेनमेंट ऑफ द राइज ऑफ कॉन्टिनेंटल पावर और द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यूरेशिया। तो इसको कंटेन करने के लिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट कपला ने जैसे बोला था ना, इंस्टेड ऑफ डिविजन्स यूरेशिया एक साथ आ रहा है, तो यूरेशियन इंटीग्रेशन हो रहा है काइंड ऑफ। तो इसके अगेंस्ट यूएसए शुड एक्ट, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर वन बेल्ट वन रोड हो रहा है, उससे भी इंटीग्रेशन हो रहा है यूरेशिया का। चाइना सिमिलर पॉलिसीज ले रहा है जैसे यूएसए करा था ना, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स है जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो यूएस लेड या फिर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका काउंटर चाइना बन रहा है, एंड दिस विल बिकम डेंजरस, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने एक रिसेंट बुक लिखा है, मार्को पोलोज वर्ल्ड। उसमें वो यूएसए को रिमाइंड करते हैं कि 13th सेंचुरी मंगोल एम्पायर था। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम पावर यूएसए के पास रह सकता है हमेशा, जो पुरानी चीजें है वो रिवाइव हो सकती है। एंड जो अभी नेक्स्ट सेंचुरी आएगी, वो यूरोपियन या फिर अटलांटिक होना जरूरी नहीं है, एशियन पावर डोमिनेट कर सकता है। बस यही है यार, ओवरऑल हिस्ट्री में रिपीट इटसेल्फ। मतलब ये सिमिलर व्यू लग रहा है मेरे को जो फरीद झकाजा वाला है ना, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ वेस्ट, सिमिलर थोड़ा सा ये। ओके, तो विच स्टेट आर तो घुमा चैलेंजर फिरा टू के यही यूएस? याद रखना है कि महान जो है वो ओशियनिक पावर की बात करते हैं, जैसा सर ने बताया ना, पुराना डेटा लेके बात करते हैं। मैककेंडर जो है वो लैंड बेस्ड पावर की बात करते हैं, एंड स्पाइकमैन जो है दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है सर। ओके, विच स्टेट आर चैलेंजर टू यूएस हेजेमनी? सर रशिया, सत्यम सर आप कुछ चाइना कह एंड रहे ईरान। थे? नहीं, मैं यही कंटिन्यू कर रहा था। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। Russia, China and Iran. If any Western power, France or Germany, could expand, the Turkey also may adversely impact US interest if it joins hands with China, Russia or Iran. Mexico. USA is overlooking potential threat which arise at its own borders because of almost a failed state. Inability of USA to check immigration. The easiest way for non-state actors to enter. These are the main countries at present where US is focusing its foreign policy. India. However, India is not a challenge. India does not have strategic culture. India is not expansionist. India's strategic culture is absorptive, defensive, and inward-looking. India has always been the land meant for invasions. South Asia can be called as a self-contained region. India always lacked grand design. In comparison to India, Pakistanis are more confident. India is an idle swing state. The best strategic use of India was done by British. India was known as Jewel of the Crown. India's location was vital to safeguard British colonial interests from Suez to Singapore. India is having strategic location in Indian Ocean, a significant continental power. India can be utilized to contain China, example in Tibet. According to them, India should play the role of net security provider in Indian Ocean region, like British India. ये ये स्ट्रेटेजिक कल्चर के बारे में किसी ने कुछ कमेंट किया है ना? ये मतलब ये पूरा ओपिनियन पीस है, इसमें किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। किसी को कुछ पता है क्या? यार आई थिंक अपन आईपीटी में पढ़ते हैं ना, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, कि स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है एंड कल्चर है। उसमें कौटिल्य वगैरह का एग्जांपल देते हैं स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर भी और इंडियन स्कॉलर भी डिफेंड करते हैं उसके बाद में। ओके, बट आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत मतलब किसी तो स्कॉलर का नाम रहना चाहिए था। ये मतलब बहुत ही ऐसा पूरा ओपिनियनेटेड है, बट कहीं पे भी किसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। वो लग रहा है लिखना भूल गए। वो ये
कीवर्ड तो स्कॉलर ही लग रहे हैं यार, अच्छी अच्छी बातें है ना। ठीक है, एक बार समराइज करने का स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो कौन चैलेंजर बन सकता है यूएसए के हेजेमनी के बाद में? तो एक है कि भाई रशिया, चाइना, ईरान हो सकते हैं, या फिर कोई और वेस्टर्न पावर भी हो सकती है अगर फ्रांस या फिर जर्मनी खुद को एक्सपांड कर ले। इट मे आल्सो बी टर्की, बिकॉज इफ दे जॉइन हैंड्स विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया और ईरान, तो टर्की भी बन सकता है। मेक्सिको भी बन सकता है, क्योंकि अभी तो करंटली फेल स्टेट है, यूएसए उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा है। बट हु नोज कि वो आगे जाकर कुछ बन सकता है, पोटेंशियल थ्रेट बन सकता है वो। एंड ठीक है, फिर ये सारे मेन कंट्रीज हैं। इनके अलावा जैसे इंडिया के बारे में बोलते हैं ना कि इंडिया इज नॉट अ मेन चैलेंज, जैसे हमें यहाँ पे स्कॉलरली ओपिनियन चाहिए होगा, वी कैन नॉट राइट इट आवरसेल्व्स। तो इंडिया इज नॉट अ चैलेंज, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटेजिक कल्चर लैकिंग है, एंड इंडिया इज नॉट एक्सपांशनिस्ट। तो इंडिया का जो कल्चर है बेसिकली डिफेंसिव है, इनवर्ड लुकिंग है, एंड एब्जॉर्प्टिव है। तो सेल्फ कंटेन्ड रीजन है, कोई ग्रैंड डिजाइन नहीं इंडिया के पास में। कंपेयर टू इंडिया, पाकिस्तान ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इंडिया इज एन आइडियल स्विंग स्टेट। ये ठीक है। आइडियल स्विंग होता है। वही यार, मतलब कि अपने interest के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम करता है, नाम वाला जो बात है ना, वही मल्टी अलाइनमेंट बनाएंगे अपने इंटरेस्ट के लिए हम, किसी को नहीं नहीं अपना सर, अपने कार्ड्स नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली ना कि स्विंग स्टेट का मतलब ये हो गया कि इट कैन बी चेंज, इट कैन बी यूज्ड फॉर अमेरिका ओन इंटरेस्ट। मतलब इंडिया की व्यूज स्ट्रांग व्यूज नहीं है कोई, इट्स नॉट अ स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं है, ये यही बात कहना चाह रहे हो। Actually, राइट, Western तो तो अपने उसको scholars have स्विंग been स्टेट के लिए criticized. यूज कर सकते हैं। Yeah, Western scholars have been criticizing India as a swing state in this perspective कि एक जगह तो आप पाकिस्तान एज अ इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशंस बिगाड़ चुके हो, बट दूसरी जगह यू हैव मेंटेन्ड वेस्ट एशिया के साथ वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स। वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये देता है कि इंडिया बीइंग अ ईस्टर्न कंट्री, वो चाइना के साथ एक फ्रंट पर जो है वो मतलब क्लोजर रिलेशंस चाह रहा था। ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है स्विंग स्टेट। और यूएस के साथ भी जब 2000 इनिशियल ईयर्स में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो इंडिया को स्विंग स्टेट बोला गया। तीसरा पर्सपेक्टिव था रशिया और यूएसए की बैलेंसिंग दैट परफॉर्मेंस वाज इंडिया वाज गिविंग, तो इसलिए उसको स्विंग स्टेट बोला गया था कि एक जगह तो आप रशिया से भी बहुत अच्छे डिफेंस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, फिर 2000 के टाइम पर आप हमसे भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाह रहे हो। तो दिस पैराडाइम वाज बॉर्न देयर कि इंडिया इज अ स्विंग स्टेट, वो स्विंग कर सकता है यहाँ से वहां अपने रिलेशंस को। ये क्या लिखा है आइडियल स्विंग ओके, स्टेट के बाद द बेस्ट स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंडिया वाज डन बाय द ब्रिटिश। ये इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है मुझे लग रहा है इंडिया का, मतलब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वगैरह, वो जो बोलना चाह रहे हैं ना कि इंडिया का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा होगा, यूएस कैसे यूज कर सकते हैं। नहीं, पर ब्रिटिश ने कौन सा यूज कर लिया? बेस्ट स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंडिया वाज डन बाय ब्रिटिश। बताता हूँ। ब्रिटिशर्स थे ना, तो ब्रिटिशर्स डिड वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड, जस्ट अ सेकंड, सॉरी गाइस, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड इंडिया। उन्होंने जो तिब्बत था, तब उसको बफर जोन क्रिएट कर लिया था रशिया के और इंडिया के बीच में, बिकॉज देयर वाज एक्चुअल फियर कि द कम्युनिज्म कुड स्पिल ओवर, द कम्युनिज्म ऑफ यूएसएसआर कुड स्पिल ओवर। एम एन रॉय के बारे में पढ़ते हैं ना बहुत सारे सोशलिस्ट स्कॉलर्स, देयर वाज, हम कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस इतने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये यही पर्सपेक्टिव है। उन्होंने तिब्बत को एज अ बफर जोन क्रिएट किया था। कहाँ पर? ईस्टर्न रीजन पर, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पर, जो भी बोलिए आप। और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है वहां पर उन्होंने अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट क्रिएट किया था, मतलब बफर स्टेट इन द सेंस कि उसके नीचे ना आए, तो उन्होंने सबसे पहला तो ये किया। दूसरा, उन्होंने, जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिया ने इंडियन ओशन को इनहेरिट किया है, एक्चुअली इंडिया इज इनहेरिटेड इंडियन ओशन यार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को यूज करके वो हमेशा स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपनी कंट्रोल कर रखते थे, ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल करते थे। इवन सिंगापुर उनकी एक ओवरसीज टेरिटरी थी। तो ब्रिटिशर्स हैव यूज्ड, हाँ राइट, मतलब इवन जो इस पे इंडियन ओशन में भी इवन जो छोटे सैटेलाइट स्टेट्स थे, जैसे आज के इसमें श्रीलंका, मॉलडीव्स और मॉरिशस, यहाँ ये सब हो गए। यहाँ पे ब्रिटिश अपना ये रखते थे, एम्बेसडर टाइप पर्सन, जो दिल्ली को रिपोर्ट करता था। मतलब वहां से वो लोग का फॉरेन पॉलिसी या फिर इंडियन ओशन रीजन का पूरा डिसाइड होता था।
ओके, ये अपन फिर इंडिया को चाइना का चैलेंजर बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ तो बोल रहे हैं कि यूएसए के लिए तो हम चैलेंजर है ही नहीं, बिकॉज अपने पास कल्चर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर उसमें वहाँ लिखा है ना, इंडिया कैन बी यूटिलाइज टू कंटेन चाइना, और उसके लिए फिर वो हम एग्जांपल दे सकते हैं, वो यूएस का जो पिवोट वाला पॉलिसी था, फिर चीज इंडो पैसिफिक जो भी पॉलिसी बनाया है उन्होंने, तो वो चाइना को कंटेन करने के लिए ही वो बनाया है। और इवन जो क्वाड भी उन्होंने बनाया है वो भी ये इसी पॉलिसी का एक डेरिवेटिव है। पॉलिसी का एक नाम भी था, वो बेट एंड ब्लीड, बक पासिंग। बक पासिंग यानी उन्होंने अपना सरदर्द हमारे सर पे डाल दिया, नहीं नहीं चाइना तुम्हारा दुश्मन है, जाओ लड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। स्विंग स्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि दृश्यम सर, यू कंटिन्यू। ये बताओ पे लिखा है ना कि इंडिया इज नॉट चैलेंजर टू यूएसए, दिस आल्सो हैज टू बी टेकन विद पिंच ऑफ सॉल्ट। देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु से इंडिया कैन रोल फ्यूचर एंड कैन जो बोल जो लोग बोलते हैं कि इंडिया विल बेनिफिट एंड ऑल दैट, सो देयर आर दृश्यम सर मल्टीपल आवाज डिफरेंट कट रही है। ओपिनियन। सर आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है सर, आई रिकमेंड आप एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन हो जाइए। दृश्यम सर। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ परफेक्टली। यस, या कट रही है अभी भी? अभी नॉर्मल है। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो भी यहाँ पे लिखा है ना कि इंडिया इज नॉट अ चैलेंजर टू यूएसए, ये मतलब कि किसी एक स्कॉलर का ओपिनियन होगा। देर आर डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। बहुत सारे स्कॉलर्स इंडिया एज अ हेजिमन को भी सपोर्ट करते हैं कि भाई इंडिया कुछ ना कुछ तो बड़ा बनेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही चीज यही एक व्यू पॉइंट है। वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही आता है ना, एक सिंगल हेजेमन इंडिया नहीं बन सकता है, ये मतलब। नहीं, एक्चुअली मैं वही बोल रहा था, ये जो इतना पैराग्राफ समराइज किया है ना, ये बहुत छोटा या लिमिटेड है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, अलग अलग करेक्ट थिंकर्स करेक्ट। अलग हो सकते हैं। ये तो ठीक है, आगे ये चलते हैं। हम लोग हेजमन नहीं बनेंगे मतलब इंडिया, बट वो सॉफ्ट हेजमन हार्ड हेजमन वाली डिबेट आ जाती है उधर, वो अलग बात है। बट ये कैटेगरिकली रिजेक्ट करना कि नहीं बनेगा, ये तो मतलब ये पर्टिकुलर का ये ओपिनियन लग रहा है, जो सर ने बोला वही लग रहा है मेरे को। चलो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। वो स्विंग स्टेट के बारे में भी थोड़ा था कि स्विंग स्टेट जिसके साथ जाएगा वो जीतेगा, मतलब आउटकम इम्पैक्ट करने की उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये होता है स्विंग स्टेट। तो अगर इंडिया यूएस को ज्वाइन करता है तो इट विल बी एबल टू कंटेन चाइना, बट इफ इंडिया जॉइंस चाइना, इट विल आल्सो बी अ चैलेंजर टू यूएस। यस। तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में ये बोलते हैं रशिया भी स्विंग स्टेट है, तो वो चाइना को ज्वाइन कर लिया तो इंडिया को बैलेंस कर देगा। तो ये ऐसे चलता रहता है मतलब एडिटोरियल में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे ये स्कॉलरली ओपिनियन होता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना। चलते आगे है ना। हाँ हाँ, मूव करते हैं जल्दी। ओके, सत्यम सर प्लीज ओपन दैट डॉक्यूमेंट। इसमें एक नाटो वाला, नाटो के बारे में दिया हुआ है। शुड वी रीड अबाउट नाटो नाउ और या फिर पहले डॉक्यूमेंट कर ले? एक बार सर डॉक ही खोल दो यार, ठीक है, उसी में से कर उसी लेंगे। में से कर। कोई पढ़ लो प्लीज। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? इसको पढ़ना है या समराइज करना है? इसको पढ़ना पड़ेगा ना। मेरा आवाज आ रहा है क्या? जब अभी हाँ भी हाँ, हो रहा है? आ रहा है हाँ नॉर्मल है। ओके,
तो इसमें देखो क्या लिखा है, यूएसए हेजीमनी का इवोल्यूशन कैसा हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, क्या था 60-70s में, क्या था 80s में, क्या था 90s में, क्या था, ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएसए की इमेज थी, एंटी इम्पेरियलिस्टिक इमेज था, अमेरिकन वैल्यूज थे, मोरल अथॉरिटी। यूएसए वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंस्टीट्यूशंस। रॉबर्ट कॉक्स ने इस चीज को बोला, इस फेज को बोला है कि यूएसए हेजीमनी था उस टाइम पे। हाउएवर दिस वाज नॉट एब्सोल्यूट। सोवियत यूनियन रिमेन्ड एज मेजर चैलेंजर, एंड नैम को भी एक चैलेंज मानते थे उस टाइम पे, क्योंकि पोस्ट कोलोनिज्म के नाम पे बहुत सारे कंट्रीज ने यूएसए से दूर रहना पसंद किया था। तो वो एक नैम को चैलेंज मानते हैं इसी फेज में। फिर 1960s एंड 70s में क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट्स आए बहुत सारे, यूथ मूवमेंट आए, काउंटर कल्चरल मूवमेंट, मेनी वुमेन्स मूवमेंट्स आए, यूएस गॉट डिफीटेड इन द वियतनाम वॉर, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हो गया, जापान एंड ईयू, क्या है ये, आई थिंक दे स्टार्टेड G7 एस्टेब्लिश हो गया। तो काइंड ऑफ एक कह रहा हूँ थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, मतलब जो आवाज कट रहा है। यार कोई और पढ़ लो ना मैं प्लीज फिर। तो चलो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, 60-70 वाला अपन ने देख लिया यार कि मूवमेंट का राइज हो गया, वियतनाम वार ये लोग हार गए, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हो गया, जापान और ईयू का राइज हो गया, और G7 ये लोग बना लिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा दिया इधर। फिर 80s देख लो, रेगन एडमिनिस्ट्रेशन बूस्टेड अमेरिकन नेशनलिज्म, सो नेशनलिज्म से ये लोग खेलने लगे। न्यू लिबरल आ गया, रोलिंग बैक दो स्टेट वेलफेयर स्टेट को रोलिंग बैक हो गया। बैगर थे एनिमी की यूएसएसआर। बेगर दाई एनिमी अप्रोच, ओके, मतलब यूएसएसआर को बीजी रखो मतलब वगैरह ये वगैरह। अमेरिकन पॉलिसी थी ना ये। चाइना भी फॉलो करता है ना इसको। इंडिया भी आर्म फॉलो रेस, करता है। ओके, नीचे देखेंगे इसको, आर्म रेस वगैरह रहा यहाँ पे। और ये कौन क्या लिखा हुआ है, स्टार वॉर कीप ऑयल प्राइसेस लो, मतलब ये पॉलिसी की फीचर है यार, ठीक है। ईयू एंड जापान स्टार्ट, इनका डिक्लाइन ऐसा फ्लैटरिंग दिखा रहा है। फ्लैटरिंग दिखा रहा फिर मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, क्या मतलब 80s में बोलना क्या चाह रहा है, ये पॉइंट्स है क्या सर, क्या है ये? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है है ना सर। कि हमको थोड़ा लेना चाहिए और उसको थोड़ा दो दो लाइन का थोड़ा एक्सपांशन करना चाहिए, तो एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगा। क्योंकि अभी देखो ये 1960s 70s में लिखा है जापान एंड ईयू, फिर 1980s में लिखा है जापान एंड ईयू स्टार्टेड फॉल्टरिंग। तो कुछ क्या लिंक है वो, मतलब क्या हुआ 60s 70s में जापान ईयू के साथ, और 80s में क्या हो गया, और उसमें यूएस का हेजेमोनी कैसे उन्होंने मेंटेन किया, ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। हम्म, देख लो यार कि 60-70 वाला तो क्लियर ही लग रहा है आई कि थिंक 7 डोमिनेट यूएस में G7 का भी rise हो गया kind of, मुझे ऐसा लग रहा है वो। सॉरी क्या बोल रहे हो तुम, आवाज कट रहा है। हेलो, ये आप लोग कंटिन्यू करो। ओके, तो आई थिंक जो ये जापान एंड ईयू वाला अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि 60s एंड 70s में ये जो वर्ल्ड वॉर टू का जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप और जापान में, यहाँ का रिकंस्ट्रक्शन फेज शुरू हो गया था। एंड बाय द टाइम 80s आया तो इनका कंप्लीट हो गया था, एंड ये जापान एंड ईयू वो लोग एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज वापस बनना शुरू हो गए थे, एंड दे वर स्टार्टेड चैलेंजिंग यूएस, ऐसा कुछ होगा। एंड फिर उनको फिर इस पीरियड में 80s में यूएस ने भी वो कैपिटलिस्ट वेव का बहुत बड़ा ये शुरू हो गया था। जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने बहुत स्ट्रिंजेंट काम अपना शुरू कर दिया था। उस कंटेक्स्ट में मुझे ऐसे लग रहा है। किसी को इस पे कुछ ऐड करना है? हाँ वही है सर, कुछ और तो नहीं आ रहा है। आइजनहावर का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ आइडिया?
बेगार दाय एनिमी करके एक वो जो कंसेप्ट था कि आपका जो एनिमी है जैसे यूएसएसआर था उसको बाकी वॉर्स में बिजी रखो और ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करो। ये आई डोंट नो ये क्या मतलब ये क्या लिंक था। मतलब वही था, उनको बिजी रखो, यूएस इकोनॉमी को ऑयल चाहिए था ना, तो ऑयल ये लोग उस टाइम प्रोड्यूस नहीं करते थे, इंपोर्ट ही करते थे ना, शेल गैस वगैरह भी नहीं होता था। तो ये राइट। एक वही था कि अपना प्राइस सही रखो, बाकी के लिए बढ़ा बढ़ा दो, इनको इंडेंस रखो यहाँ वहाँ पे। तो यूएस में ये सिविल राइट्स मूवमेंट भी बहुत चला, मतलब वो ब्लैक मूवमेंट वगैरह, विमेंस मूवमेंट, वियतनाम एंटी वॉर मूवमेंट, ये सब भी। तो ये यूएस हेजिमनी की तरफ कैसे मतलब कैसे बढ़ाता है ये भी समझ में नहीं आ रहा सर बढ़ाता नहीं, कम करता है ना। है। ओके। वो फैक्टर लिखे हुए हैं, इम्पैक्ट किया है इसने, बढ़ा भी रहा घटा भी रहा। जैसे सिविल वॉर वगैरह ने घटाया भी होगा ना, तो किसी चीज ने बढ़ाया भी होगा, इन बात वो है। ओके ओके। अब जैसे यूएसए का डिफीट हुआ है तो ऑब्वियसली उससे हर्ट ही होगा ना उस हाँ फेज हाँ में। रॉबर्ट कॉक्स ने इसका यूएस हेजिमनी के बारे में लिखा है क्या? हाँ सर हाँ। हेजिमनी का भी कंसेप्ट देते हैं ना रॉबर्ट कॉक्स। ओके। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर उनका एब्सोल्यूट यूएस का हेजिमनी नहीं था, उसका चैलेंजर्स ये थे सोवियत यूनियन और नैम। मुझे क्या लगता है, ये जो आफ्टर WW2 लिख रखा है ना, ये 91 तक का ही मेन बात बोल रहा है। ये इन्होंने 60-70 के कुछ इंसिडेंट्स लिख रखे हैं कि आप इनसे आइडिया लगा लीजिए। हाँ मतलब फेज तो वही रहेगा ना कि 45 से 91 वाला एक हेजमनी वाला फेज पढ़ेंगे हम, फिर 91 से 2001-2 वाला जब एब्सोल्यूट पावर था, ऐसा कुछ है ये सीन। अरे एक काम करते हैं ना, पूरा एक बार सारे कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑन इट। ऐसे राइट अगर राइट, हर प्लीज कीवर्ड गो को अहेड। रोकेंगे ना तो कुछ ज्यादा क्लिक नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, ये देख लेते हैं, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर 1990 से 2001 वाला। फुकुयामा का डिबेट, एंड ऑफ हिस्ट्री, वी नो दैट। यूनिपोलर एक ही पोल हो गया था, ठीक है। नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन हो गया था, ठीक है। यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन था इनका, और वर्ल्ड पीस ऑफिसर यूएस बिहेव कर रहा था, तो यूनिपोलर होगा था, उसने सब किया, मतलब ये। पुलिस ऑफिसर करेक्शन। ओके, सॉरी। ठीक है, इसके बाद 2001 में, मेरा आवाज आ रहा है क्या अभी? अभी भी आ नहीं आ रहा रहा है। है? कंटिन्यू। ओके, सो 2001 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, मतलब 90 से 2001 देखा अपन ने कि एंड ऑफ हिस्ट्री वगैरह, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग हेजेमनी थी उनकी, क्योंकि रशिया उसी टाइम में डिक्लाइन हो रहा था ना शायद। ठीक है, फिर 2000 में कट रहा है फिर से यस सर। कट रहा आवाज। है, मैं देखता हूँ, चलो। 2001 के बाद क्या हुआ, जो यूनिलैटरल टेंडेंसी ऑफ यूएसए दिखा रहा है, मतलब ये अपना यूनिलैटरल दिखाने लगा, जैसे आईसीसी रोल आउट कर दिया इन्होंने, क्योटो प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया, वॉर और टेरर, मतलब टेरर को अपने हिसाब से यूज किया, ठीक है। ओवर यूज ऑफ हार्ड पावर। फिर स्ट्रॉन्ग चैलेंज आया कुछ 2001 के बाद इसको, चाइना से, जैसे रशिया वगैरह ने चैलेंज किया। कुछ वीक चैलेंज थे यार, जैसे ब्रिक्स वगैरह, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एशियन वैल्यू। तो ये 2001 वाला फेज है, 2001 से 2010 वाला शायद। उसके बाद 11 से 20, मतलब 90 से 2001 दे डोमिनेटेड, 2001 से 2010 के बीच में थोड़ा सा यूनिलैटरल इन्होंने बिहेव किया, तो डिक्लाइन होना यहीं पे स्टार्ट हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैलेंज भी आ रहा है 2001 से 2010 के बीच में, और वीक भी आ रहा है, थोड़ा बहुत चैलेंज स्टार्ट हो गया है। फिर 11 से वीक दिखा रहा है डिक्लाइन, जैसे कि ट्रम्प का प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है, यूक्रेन क्राइसिस जो भी चल रहा है, ठीक है। चाइना के बैंक जैसे एनबीडी, AIIB, ब्रिक्स बैंक वगैरह, चाइनीज एग्रेशन देख लो, साउथ चाइना सी वगैरह में, इकोनॉमिक डोमिनेंस हो गया, OBOR हो गया, BRI, और एलिनेशन ऑफ फ्रेंड्स ट्रम्प के टाइम में हुआ था, कि नाटो का क्राइसिस हो गया था, G7 वगैरह, राइज ऑफ वेस्ट, डिक्लाइन ऑफ वेस्ट, ईरान और नॉर्थ कोरिया वाले समाल पार्टी भी इनको चैलेंज कर रही है, तो दिस इज नाउ दे आर अंडर अ सीरियस पाम। और इसी में अभी अपन ने पढ़ा था ना मैकेंडर वाला और स्पाइकमैन वाला, वो दोनों भी लिख सकते हैं हम, कि मतलब जैसे महान वाला तो यूएसए को सपोर्ट करता है, लेकिन मैकेंडर का धीरे तो लैंड पावर को सपोर्ट कर रहा है, और स्पाइकमैन वाला रिमलैंड को सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों भी डाल सकते हैं इसमें।
अच्छा, अगर ये टेबल को एक्सपांड करना हो 21 22 का इसमें, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज फिनिश्ड, यूएस हेजेमनी खत्म हो गया। अरे नहीं सर, ऐसे कैसे? अफगान क्राइसिस और ये यूक्रेन वॉर का एग्जांपल देके। नहीं, डिक्लाइनिंग फेज ही दिखाएंगे ना यार, हेजमनी हम तो सब कैसे? डिक्लाइन बोल सकते हैं, अरे एंड सर नहीं सर बोल सर सकते। एक सेकेंड, हमें एग्जाम में दोनों भी व्यू पॉइंट लिखने हैं, तो यू आर राइट, अफगानिस्तान का यूक्रेन क्राइसिस लेके बोल सकते हैं कि खत्म हो गया है, बट अगेन वी हैव टू काउंटर इट विद सेइंग कि अभी भी काफी हद तक पावर है ना, आगे आएगा वो शायद है नेक्स्ट कहीं पे, पूरा हाँ, नहीं हुआ ऐसे करके। इकोनॉमी ये डोमिनेट आई करते थिंक हैं। ये पार्ट है, ये थोड़ा करंट है, तो ये हम लोग अभी हमको बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब एग्जाम के पहले। सर मैं कह रहा हूँ ना, अभी यूएसए की हेजेमनी खत्म नहीं हुआ है। आप अगर देखोगे ना, आगे डिबेट है कि ये बेनिवोलेंट है कि मैलाइन है। डिबेट क्या है, डिक्लाइन स्कूल है, एक स्कूल बोलता है कि डिक्लाइन नहीं हो रहा है। आगे देखो ना, हेड जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ना, पूरा डिबेट दिया है। हम लोग एक बार देखते हैं, देन विल डिस्कस ऑन दिस। द थिंग इज दैट कि जैसे ही रशिया अटैक करता है यूक्रेन पे, यूएस का हेजेमनी खत्म हो जाता है ना, यूएस रेफ्यूजेस टू टेक एनी डायरेक्ट एक्शन। तो सर वही कह रहा हूँ मैं, यू आर राइट, दैट इज वन व्यू पॉइंट। ओके, नहीं मैं क्योंकि ये टेबल को आगे लेके जा रहा था, जैसे ये डिक्लाइन 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 दिखा रहा है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि खत्म हो गया अभी ये चीजों के बाद तो। सर उसी के बारे में आगे लिखा है। ओके ओके, चलो लेट्स रीड फर्दर, देन विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द टॉपिक। इधर बेगर दाई एनिमी का डेफिनेशन लो सर, थोड़ा ऊपर। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या, या अभी ब्रेक हो रहा है? हेलो, हाँ आ रहा है is my नॉर्मल। voice clear guys? Okay, so beggar thy neighbor is a term used for set up policies that a country enacts to address its economic woes, that in turn actually worsens the economic problems of other countries. The term comes from policies impact as it makes a beggar out of neighboring countries. ठीक है, आगे चलो, थोड़ा नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो आगे एक डिबेट है कि जो यूएसए का हेजिमनी है वो उसका नेचर क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि बेनिवोलेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैलाइन है। तो रियलिस्ट क्या बोलेंगे कि ऑल ग्लोबल हेजिमन्स आर सपोज टू बी मैलाइन। ठीक है, तो रियलिस्ट बोलेंगे भाई हेजिमन का काम ही वो है, दे आर सपोज टू बी मैलाइन। रेडिकल थियरिस्ट है नॉम चॉम्स्की, वो बोलते हैं कि इंटेंसिफाइंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंपेरियलिज्म, मतलब काइंड ऑफ यूएसए को ब्लेम करता है कंप्लीटली वो। वॉर ऑन टेरर वाज एक्चुअली डिजायर फॉर ऑयल सप्लाईज। ठीक है, फिर एक और है नॉम चॉम्स्की का, वो बोलते हैं ना कि यूएसए एक कैपिटलिस्टिक स्टेट है that is ready to go for war in to protect the interest of the capitalist bourgeois class of the USA। तो ये याद रखना, नॉम चॉम्स्की द क्रिटिक ऑफ यूएसए। फिर न्यू कंजर्वेटिव है रॉबर्ट कूपर, वो बोलते हैं कि यूएसए हैज डन मच टू प्रमोट डेमोक्रेसी। हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थियरी सपोर्ट करती है इनको कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं एंड स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर है, तो मतलब एक ग्लोबल पुलिसमैन या फिर रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड किया है वर्ल्ड वाइड। फिर एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि यूएसए का जो भी काम कर रहा है इट्स एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट है। यूएसए इज लाइक ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, पूरे वर्ल्ड को अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो। तो ये था बेनिवोलेंट वर्सेस मलाइन। इसमें किसी को कहना है क्या? ये मलाइन क्या होता है? खराब है, और मतलब मलाइन मतलब ऐसा जिसका कोई एग्जांपल नहीं है ज्यादा। आई थिंक मलाइन मतलब खराब हेजेमनी ना, नेगेटिव टोन है ना, करने वाला, स्प्रेड करने वाला। मतलब पर उसको थोड़ा कंटेक्स्ट में रखो ना, कोई एग्जांपल कुछ। चाइना बोल सकते हैं, रीजनल में चाइना इज द मलाइन हेजेमनी। वाई? सिंगल सेंटर ऑफ पावर मेंटेन करने का ट्राई करता है, और बेनोवलेंट हेजेमनी मतलब सॉफ्ट पावर ज्यादा यूज करता है, हार्ड पावर का यूज कम करता है। ग्लोबल पुलिसमैन का रोल उसमें कम होता है। एंड बेनिवोलेंट मतलब दूसरे के फायदे के लिए, मैलाइन मतलब खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए।
जैसे कुछ एग्जांपल बताया ना, चाइना बोल सकते हैं ना मैलाइन। नहीं, तुम मतलब एग्जांपल कंट्री बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ एक्शन बताओ। बताता हूँ आपको अरे एग्जांपल। देखो यार, अफगानिस्तान देख लो, मतलब कि अफगानिस्तान में ये लोग घुस गए ना, अपने इंटरेस्ट के लिए घुसे थे, तो अफगानिस्तान को तो तबाह करके रख दिया ना, तो वहां पे नेगेटिव हेजमनी आएगा, समझ रहे हो? तो ये बोल सकते हैं मैलाइन हेजमन है यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक को हम बोल सकते हैं क्या बेनेवोलेंट हेजेमनी? एंड मलाइन हेजेमनी के लिए सर आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में आप मेलाइन हेजीमन डालेंगे। बेनेवोलेंट जो है वो दूसरों के सोचने के लिए, मेलाइन यानी कि खुद की। जो नवीन तो सर ने वर्ल्ड बैंक तो डिस्कस, आपको लोन्स दे रहा है ना कंट्रीज को, तो वो तो सर मतलब वर्ल्ड बैंक में ज्यादा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आर द इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन मोनोपोलाइज्ड बाय यूएसए, बट राइट, दैट इज हेजेमनी। वो यस मोनोपोलाइज अरे है, वो लिसन लिसन हेजेमनी है। गाइस, लेट अस नॉट गेट इनटू डिबेटेबल थिंग्स, क्योंकि ये डिबेटेबल होगा ना यार। किसी को लगेगा कि वर्ल्ड बैंक फायदे के लिए ये बना है, किसी को लोग, मतलब इट्स डिबेटेबल आई वुड से। सर आई बिलीव वी बट शुड। एक्चुअली हाँ बोलिए। दिक्कत ये है कि मुझे लगता है कि वो कुछ दोनों काम करता है, मैलाइन भी काम करता है और बैलेंस भी करता है। द थिंग इज दैट हम लोग थोड़ा बट कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे ना, तो इट विल बी बेटर। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे और फिर क्लैरिटी थोड़ा कम रहेगा ना, तो फिर हमारा ये नहीं है कुछ। Actually, sir, I सर believe we हर are एक not का तो clearing नहीं the था, concept. जो We आपको are लग रहा gloating है over कुछ। the topic. Yeah, we are not clearing the concept. We are gloating over the topic. Jab we indulge in more discussion, that is true from your perspective as well as my perspective. So it is diverging from the main concern and going into a deep state of discussions that have endless uh, statements to be given from both the sides. ओके चलो एक काम कर लो, मैलाइन हेजीमनी के बारे में, बेनेवोलेंट हेजीमनी के एग्जांपल्स, स्पेशली स्कॉलरली ओपिनियन आप ग्रुप में डाल देना बाद में, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है डिबेट ऑन यूएसए हेजीमनी। उसमें कुछ लोग डिक्लाइन कर रहे हैं ऐसा बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे डिक्लाइन नहीं कर रहा है। तो जैसे यूएसए's वॉर ऑन टेरर लेड टू डिक्लाइन इन यूएस हेजीमनी। फिर इसमें बुश इन हिज सेकंड टर्म स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीलैटरलिज्म। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड फॉर न्यू बिगिनिंग। मिलिट्री पावर इज नाउ रिडंडेंट पॉलिटिकली। ठीक है, ये कहना मुश्किल है अभी रशिया के अटैक के बाद में स्पेसिफिकली। रिलेटिव इकोनॉमिक डिक्लाइन विथ राइज ऑफ ब्रिक्स एंड G20। तो इकोनॉमिक स्फीयर में इनको चैलेंज मिल गया, ब्रिक्स एंड G20, स्पेशली राइज ऑफ चाइना वगैरह। डिक्लाइनिंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, एग्जांपल ईरान इशू पकड़ लो, सुन ही नहीं रहे लोग। नॉर्थ कोरिया पकड़ लो, यूक्रेन का भी देख लो, अभी कितने भी सैंक्शन लगा हुआ, रशिया सुन ही नहीं रहा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है आजकल। इकोनॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड है अभी, तो इसीलिए भी डिक्लाइन हो रहा है। प्रोटेक्शनिज्म हो रहा था अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप। फिर G7 का एक बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव था। विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान एक है जो नेगेटिव देखा जाता है कि भाई डिक्लाइन हो रहा है। चाइना का BRI है, OBOR है, हुआवी फियास्को हुआ था। मतलब चाइना इज नाउ लुकिंग इनटू आईज लाइक कुछ भी बोल रहा है सीधा सीधा मुंह पे। तो दैट शोज कि डिक्लाइन ऑफ यूएसए हो रहा है। फिर मार्शल प्रिजनर्स ऑफ हिस्ट्री, यूएस ब्लेस्ड विद ज्योग्राफी बट चेंजिंग। किसी को ये समझ आया क्या मार्शल का क्या लिखा है ये? यस सर, उन्होंने बताया था कि व्हाट यूएसए इज वाज बिकॉज, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ये बहुत सारे स्कॉलर्स बोल चुके हैं, किसी एक का नहीं है मोनोपोली। तो अब जब नई नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बन रही हैं, तो फिर ये जो ज्योग्राफी वाली बात है रिडंडेंट हो गई कि नहीं भाई तुम्हारी ज्योग्राफी वही है, तो भी चाइना यहाँ बैठे बैठे बम से उड़ा देगा तुम्हें। हाइपरसोनिक मिसाइल जो पूरे ब्रह्मांड का पूरे धरती का 2 चक्कर लगा के करेक्ट वापस करेक्ट भेज दिए, वो है। हाँ सर, हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि दोनों तरफ से ये कोई अटैक नहीं कर सकता, तो वो वही बात बोल रहा है, ये घुमा फिरा के। हाँ, अब मतलब अब नहीं लागू होगा ना वो। हाँ हाँ, ठीक है, वही वही। अच्छा ठीक है। आगे है कि कोविड-19 डिड नॉट हेल्प द वर्ल्ड ओवर। मतलब यूएसए ग्लोबल हेजेमन तो मान रहा था, लेकिन कोविड के टाइम पे वर्ल्ड को हेल्प नहीं करा उन्होंने। फिर वैक्सीन नेशनलिज्म की बातें करने लग गए वो लोग, वेस्टर्न पकड़ लो। फिर जैसे हेजीमन क्या होता है, कैपेसिटी होनी चाहिए और विलिंगनेस होना चाहिए उसके पास में। मतलब दे शुड हैव द कैपेसिटी टू फ्रेम द रूल्स एंड देन विलिंगनेस टू एग्जीक्यूट द रूल्स। लेकिन वो कम होने लगा है उनका दोनों भी, तो वो आई थिंक प्रोटेक्शनिज्म की तरफ इशारा कर रहा है। फिर यूएसए का स्टैंड ऑन ताइवान टिबेट नॉट सेटिस्फैक्टरी। मतलब एक एग्रेसिव पोस्टर नहीं दे रहे हो चाइना के अगेंस्ट, दे आर ट्राइंग टू कोऑपरेट विद चाइना आल्सो इन शॉर्ट। फिर एलिनेशन इन सिक्योरिटी ऑफ द नाटो अलाइज। मतलब जैसे अभी यूक्रेन का पकड़ लो, यूक्रेन के बाद में
नो कंट्री इज एबल टू ट्रस्ट यूएसए। अगर कल को जापान के ऊपर अटैक हुआ, ताइवान के ऊपर हुआ, तो विल द यूएसए कम फॉर हेल्प? ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है अभी। देयर इज नो डिसिसिव स्टैंड ऑन क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, म्यांमार ह्यूमन राइट्स इशू। कैपिटल हिल प्रोटेस्ट हो गए थे, दैट शोज की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो भी नहीं है यूएसए में भी। फिर इन 20th century पॉलिसी ऑफ कंसिस्टेंसी, बट नाउ वी सी अ पॉलिसी ऑफ इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, ये बोला है। फिर ब्लैक राइट मूवमेंट्स आए, जैसे जॉर्ज फ्लॉयड का देख लो। तो ठीक है यार, ये सब पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है विच आर इन सपोर्ट ऑफ डिक्लाइनिंग स्कूल। थोड़ा सा नीचे ले लीजिए सर, कुछ स्कॉलरली ओपिनियन है। ये डिबेट थर्ड पॉइंट होगा, एक मिनट थर्ड पॉइंट की ओबामा ने बोला है न्यू बिगिनिंग, क्या है वो? थोड़ा किसी को पता है तो थर्ड पॉइंट ओबामा वाला। किसी को पता है तो बोल दो, लेकिन वैसे भी पुराना हो गया, अब तो काम का नहीं है। ओके ठीक है, किसी को पता क्या? चलिए सर आगे देखते हैं। ठीक है। फिर फरीद जकारिया है, उन्होंने पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नॉट बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग बट बिकॉज ऑफ राइज ऑफ अदर्स। उनका फेमस स्टेटमेंट है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड द राइज ऑफ द रेस्ट। ठीक है। को जोसेफ नाई है, उन्होंने बोला है कि पॉलिसीज ऑफ बुश एडमिनिस्ट्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल। एक्सेसिव रिलायंस ऑन हार्ड पावर हैज लेड टू डिक्लाइन ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ यूएसए। फिर एरिक एडलमैन है, उन्होंने टर्म यूज करा है अमेरिकन ज़िडगिस्ट या फिर अमेरिकन एरा हैज क्लियरली शिफ्टेड, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ है एंड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंटी डिक्लाइनिस्ट स्कूल। कौन बोल रहे हैं कि भाई एंटी डिक्लाइनिस्ट है? तो एक पॉइंट है कि यूएसए कंटिन्यूज टू होल्ड रेन्स ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस, लार्जेस्ट मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक पावर है अभी भी वो लोग। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डिप्लॉइंग स्मार्ट पावर। यूएसए's population is its strength, अनराइवल्ड स्ट्रक्चरल पावर उनके पास में। किसने बताया स्ट्रक्चरल पावर? कल परसों पढ़ा था अपन ने। सुजैन स्ट्रेंज थी वो। ठीक है, याद रखना, स्ट्रक्चरल पावर यूएसए के पास है, ऐसा किसने बोला है? तो सुजैन स्ट्रेंज ने बोला है। फिर हेजीमनी अभी भी है आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ में, इकोनॉमिक स्फीयर में, अभी भी यूएसए इज इन P5 कंट्री। फिर ओशियन का भी पावर है उनके पास, लैंड का भी पावर है, रिसोर्सेज काफी है, फूड सफिशिएंसी है। अपन जितने भी यूएसए हेजीमन वाले पॉइंट दिखते हैं ना बेसिक, वो सब कुछ यहाँ पे लागू होंगे। थोड़ा नीचे आ जाइए सर, स्कॉलर्स का ओपिनियन देखते हैं। फिर मैडलिन अल्ब्राइट है, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने बोला है कि यूएसए इज एन इंडिस्पेंसेबल नेशन, अदर्स अंडरस्टैंड एंड नीड यूएसए हेजीमनी। ठीक है, मतलब सबको जरूरत है यूएसए के हेजीमनी के। फिर सैमुअल पी हंटिंगटन, इन्होंने बोला क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हुआ था, यूएसए पावर जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एंड मोर चैलेंजेस टू अदर्स। ठीक है, हंटिंगटन का किसी को और कुछ याद आ रहा है क्या? क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने चाइना से बच के रहने को कहा था यूएसए को। ठीक है, और उन्होंने एक्सिस के बारे में बोला था ना कि इस्लामिक एंड चाइनीज सिविलाइजेशन अगर साथ में आ गए तो यूएसए को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और क्या बोला था उन्होंने? वही यार, काफी टाइप की सिविलाइजेशन बताई दे सकते हैं, मतलब 6-7 टाइप की, रशियन, इंडियन, चाइनीज, ये सब। वो तरीका भी बताया कि कैसे क्या फाइट करना है इनसे, कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, मतलब बेसिकली हंटिंगटन का यह कहना था ना कि यूएसए अभी भी पावरफुल है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिविलाइजेशन। ठीक है। रॉबर्ट कागान है, उन्होंने बोला है कि यूएसए डिड नॉट चेंज आफ्टर 2001, इट बिकेम मोर इटसेल्फ। क्या मतलब हो गया इसका? 9/11 क्राइसिस के बाद की बात कर रहा है, जो यूएसए के एडवर्स एक्शंस थे ना। सबसे पहले तो यूएस जो ऑन द फेस ऑफ लिबरलिज्म, यूएस हैज बीन फ्लाउटिंग। ये बहुत क्रिटिकल व्यूज है कि यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब गिराया, तो उसके बाद फिर यूएस बन गया कि नहीं नहीं हम तो इंसाफ के देवता हैं, हम तो बहुत शरीफ हैं। लेकिन जब 2001 के बाद उन्होंने 9/11 के बाद जो जो किया ना, धीरे धीरे उन्होंने,
एक एक करके वेस्ट एशियन कंट्रीज का गिराना, नेटो का एक्सपेंशन करना, फालतू में रशिया को परेशान कर देना नेटो का एक्सपेंड करके, और कितने ही सिर्फ ऑयल के चलते कितने ही देशों का तबाही मचा दिया। तो उसमें आई गेस ये इस पर्सपेक्टिव में, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा कि कैसे यूएस की एंटी डिक्लाइनिस्ट स्कूल में आ रहा है, क्योंकि ऐसा सब लोग बोलते हैं कि जो 2001 के बाद यूएसए कर रहा है 9/11 के बाद, वो उसके पहले वाली ही फेज को दिखाता है, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वाली जो फेज थी। ठीक है सर, देखते हैं अपन। चार्ल्स क्रॉथहैमर हैं, इन्होंने बोला है कि डिक्लाइन इज अ चॉइस, मतलब जो अभी यूएसए डिक्लाइन कर रहा है वो खुद के चॉइस से कर रहा है वो। ही ब्लिम्स ओबामा, डिक्लाइन कैन बी अरेस्टेड। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा ये। क्रिस्टॉल बोल रहे हैं कि बेनिवोलेंट ग्लोबल हेजेमनी है यूएसए का। रॉबर्ट कूपर बोलते हैं न्यू फॉर्म ऑफ इंपेरियलिज्म मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑर्डर टू ग्लोबल कैओस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लीजिए सर, आई थिंक ये खत्म हो गया, बस थोड़ा देख लो एक बार। हाँ, फिर आगे चाइना तो चैलेंज है। अब बताओ इसमें कैसे कुछ ऐड करना है क्या यूएसए के बारे में, नेचर ऑफ हेजेमनी या फिर डिक्लाइन या फिर एंटी डिक्लाइन वाले कुछ ऐड करना है किसी को? कोई पॉइंट हो तो बोल दो, किसी को भी एक्स्ट्रा। आजकल सर सभी जगह पर जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, वहां पर सब लोग सारे के सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज एक प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन। बट यूएस नहीं फेस कर रहा। सबसे पहली बात तो उनकी जो पावर है वो एक सॉफ्ट पावर के इर्द गिर्द घूमती है, जो उनकी हेजेमनी बनाती है, और वही सॉफ्ट पावर उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट देती है, चाहे वो इंडिया से हो या अफ्रीकन नेशन से हो। तो वो अपने करेक्ट, उस पावर का भी यूज करते हैं इसमें, हेजेमनी को इंग्लिश बेस्ट। लैंग्वेज हॉलीवुड पकड़ लो ना। हाँ सर, हॉलीवुड एक तरीके का प्रोपोगेंडा मशीन है यूएसए का, जिसमें वो हाँ, सिर्फ बुरी बातें दिखाते हैं दूसरों के बारे में। करेक्ट करेक्ट। मैं एक कहीं तो पढ़ रहा था ना मैं, आज भी हॉलीवुड मूवीज जब बनती है ना, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि यार यूएसए इज अ ग्लोबल पुलिसमैन, एंड किसी भी कंट्री में कोई बड़ा हादसा होता है, इवन मून पे भी कुछ बड़ा हादसा होता है ना, मार्स मर्क्यूरी पे भी, तो भी वहां पे यूएसए का स्टेट पहुंच जाता है बचाने के लिए। तो दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर बढ़ाने का तरीका है ये। यस सर, इस पर काफी सारे आर्टिकल्स वीडियोस मैंने भी बहुत एक जमाने पहले पढ़े थे। आजकल जो नई हॉलीवुड मूवीज आती है ना, उसमें जैसे शांची जो भी नई नई पिक्चर आती है, उसमें चाइना को भी अच्छा दिखाया जाता है, क्योंकि काफी सारे पिक्चरें जो है वो चाइना ही फाइनेंस करता है। यूएस के डायरेक्टर जाते हैं चाइना फाइनेंस लेने, तो चाइना का करेक्ट सबसे पहला ये होता है कि हमें अच्छा दिखाओ। ओके, तो दैट ब्रिंग्स अस टू चाइना एज अ चैलेंज, राइट? यस सर। सत्यम से थोड़ा नीचे ले लेंगे। किसी को और कुछ ऐड करना है यूएसए हेजीमनी के बारे में? ठीक है, तो चाइना एज अ चैलेंज है या नहीं है, इसके बारे में कुछ स्कॉलरली ओपिनियन देखते हैं। जॉन मीरशाइमर बोलता है कि कंसिडर्स चाइना एज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ही हैज वार्न्ड यूएसए नॉट टू लेट द गैप बिटवीन द टू नेशंस नैरो। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है अभी, चाइना रशिया यूएसए अभी मल्टीपल पोल्स है, बट आगे जाके चाइना गैप क्लोज कर रहा है, ऐसे बोल रहे हो। ग्राहम एलिसन है, वो कहते हैं कि थुसीडाइडस ट्रैप में है, यूएसए एंड चाइना आर इन थुसीडाइडस ट्रैप। क्या होता है थुसीडाइडस ट्रैप? कैन समबडी समराइज? सर उसमें इनएविटेबल ट्रैप बिटवीन द टू पार्टी इंक्लाइन, मतलब जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है ना, उनके बीच में इनएविटेबल जो भी करना है आप कर लीजिए। सर कौन से टू पार्टीज? यूएस और चाइना सर, मतलब ये कोई किसी भी नहीं, कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नेसेसरी नहीं है, उन्होंने जो बोला था ना स्टेटस। वो, हाँ, एक स्टेटस कोइस्ट है, तो रिविजनिस्ट पावर है। पुतिन सर कंटिन्यू। हाँ नहीं सर, बस हो गया और क्या। एक रिविजनिस्ट पावर है और एक स्टेटस कोइस्ट। रिविजनिस्ट हमारे चाइना हो गए, स्टेटस कोइस्ट यूएसए। इसमें शायद उन्होंने एक दो और चीजें बोली थी। हमेशा ऐसा होता है ना कि रिविजनिस्ट पावर जो होती है ना, वो वॉर करती है मैक्सिमम टाइम्स, एंड मैक्सिमम टाइम्स रिविजनिस्ट पावर जीतती है, ऐसा ही बोला था उन्होंने। ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन देखते हैं कि यूएसए एंड चाइना का कोर कॉन्फ्लिक्ट है, whereas यूएस इस्लामिक इज अ फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट। तो बस एक कीवर्ड याद रख लो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थीसिस में उन्होंने कोर कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है एंड फॉल्ट लाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात करी है। He further says कि it will be a nightmare if China develops an axis with Islamic world। मतलब चाइना ईरान रिलेशन अगर इंप्रूव हो गए तो ये नाइटमेयर होगा। ये तो हंटिंगटन ने बोला है, लेकिन अब तो रशिया ईरान चाइना एक्सेस बन रहा है, अब क्या कितने नाइटमेयर्स आएंगे देख लो। ठीक है, हेनरी किसिंजर इज अ फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
looks at China as an opportunity. उन्होंने बोला चाइना शुड बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट. 2011 का बुक है ऑन चाइना. He has pointed to China's fondness of game weak key, which involves complex tactics of encirclement. ठीक है, ये था 3-4 स्कॉलरली ओपिनियन. और है जोसेफ नाई बोलते हैं जैसे एंड ऑफ हेनरी किसिंजर की जो बुक थी उसमें जो चाइना के ऊपर कमेंट किया है, अभी थोड़ा ऊपर, एक थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्क्रॉल तो उसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई? यार आई थिंक ही इज रेफरिंग टू स्ट्रेटेजिक कल्चर इन चाइना. आई एम नॉट श्योर, बाकी लोग को अगर पता हो तो बता दो अच्छे से. वही बोल रहा है यार कि एकोमोडेट करो उनको, वो मत देखो अपना. जैसे यूएस बाकी लोगों को करता ना, जैसे जापान वगैरह को किया, इसने ईयू को कर दिया, वो सेम उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि उनको अपना राइवल मत मानो, एनसर्कलमेंट कर लो, मतलब प्यार मोहब्बत से करके, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है. किसी को कुछ बताना है इस पे या फिर आगे चले? मेरे को यही समझ आया कि भाई चाइना को इक्वल पावर की तरह ट्रीट करो. डोंट अंडर एस्टिमेट देम, दे आर ऑलरेडी पावरफुल. दे आर डूइंग एनसर्कलमेंट का स्ट्रैटेजी कल्चर है उनका. तो फिर वो तो अगर ऑलरेडी पावरफुल है तो यूएस की हेजेमनी कैसे बनेगी? तो मतलब बनेगी ही नहीं ना, खत्म हो जाएगा. एक्सेप्ट कर रहे हैं ना किसिंजर. अच्छा, हाँ, ओके. यस बोल रहे हैं ना किसिंजर तो. ओके, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होकर के भी वो यस बोल रहे हैं. अरे फॉर्मर है ना भाई, ऑफिस छोड़ने के बाद तो ऐसे ही बोलते लोग. ओके. किसिंजर का हमेशा मतलब थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है चाइना की तरफ. वो हमेशा मतलब उसने एडवोकेट किया है कि चाइना को कंटेन मत करो, उसको अडॉप्ट करो, मतलब अपने साथ ले लो. ओके सर, ओके. अच्छा, एक स्कॉलर है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो यूएस को बोलते हैं ना कि यूएसए शुड वर्क विथ रशिया टू कंटेन चाइना. कौन है वो? ब्रह्मचेलानी बोलते हैं हाल फिलहाल में, लेकिन बुक में किसने लिखा है पता नहीं, बट ब्रह्मचेलानी ये सब बोलते रहते हैं यार. आई थिंक पता नहीं. ठीक है, आगे आएगा शायद. वो पता है क्या? मे बी मेर शाइमर, बट देख लेंगे आगे. चलो आगे चलते हैं सर, आगे आइए. ठीक है, तो जोसेफ नाई का देखा अपन ने, एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज एंड ऑफ यूएस चाइना अलायंस. ठीक है, तो ये भी याद रख लो यार, है ना. एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया मतलब एंड ऑफ यूएस चाइना अलायंस हो गया. ली क्वान यू बोलते हैं चाइना इज नॉट जस्ट अनदर बिग प्लेयर, rather biggest player which is rising as a comprehensive power. अब बताओ, इसमें 2 कीवर्ड्स आ गए कि बिगेस्ट प्लेयर बन रहा है एंड कॉम्प्रहेंसिव पावर है. व्हाट डज कॉम्प्रहेंसिव पावर मीन? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब वही है यार कि हर एंगल में ना, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जैसे सॉफ्ट पावर भी बना रहा है. मिलिट्री. आई थिंक इसका कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है कि जो यूएसए नहीं कर पाया वो चाइना कर पा रहा है. जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड को वो फाइनेंस कर रहा है, प्रोजेक्ट्स ला रहा है, जो जो यूएस ने करना चाहिए था, यूएस ने सिर्फ अपना ही काम किया है, तो वो चाइना वैसे नहीं कर रहा. चाइना अपना सबका डेवलपमेंट दिख रहा है. अच्छा, ठीक है सर, आगे चलते हैं फिर. नेक्स्ट है नेपोलियन, व्हेन चाइना विल राइज आउट ऑफ द स्लम्बर इट विल एस्टोनिश द होल वर्ल्ड. ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा स्टेटमेंट है. आगे चलते हैं. नो, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि नहीं, चाइना इज नॉट अ चैलेंज टू द यूएसए. इसमें सबसे मतलब ये है ना कि शी जिनपिंग ही बोलते हैं कि न्यू मॉडल ऑफ ग्रेट पावर रिलेशंस लाने की जरूरत है. मतलब जो ये सब जो है ना, कोल्ड वॉर वगैरह, ये सब जंक मेंटेलिटी, ऐसा कुछ तो कीवर्ड यूज करते हो. शायद ट्रम्प ने जंक मेंटेलिटी बोला था, लेकिन शी जिनपिंग भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए. यूएसए पॉलिसी और कंटेनमेंट एंड एंगेजमेंट था, जैसे टिबेट पॉलिसी एक्ट हो गया, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979, थर्ड मिसाइल सिस्टम, सिंजियांग में कर्बिंग राइट्स ऑफ उइगर मुस्लिम्स, करेंसी मैनिपुलेटर है कर रहा है चाइना, वायलेटर ऑफ आईपीआर, ट्रम्प इज ट्राइंग टू मेक इन यूएसए. यार आई थिंक शी जिनपिंग का व्यू नहीं है नीचे वाला. शी जिनपिंग सिर्फ इतना, हमें नया कुछ पावर रिलेशन का मॉडल सोचना चाहिए. वी शुड नॉट बी इन द कोल्ड वॉर मेंटेलिटी.
एंड ये जो है ना यूएसए का पॉलिसी बताया कि चाइना के कैसे काम कर रहे हैं वो है। तो चाइना इज नॉट रियल चैलेंज। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल मॉडल। चाइना डज नॉट हैव पीसफुल नेबरहुड। प्रेशर कुकर सिंड्रोम एक कीवर्ड यूज करते चाइना के लिए, मतलब वो कभी भी फट सकता है। अभी तो ठीक है डेमोक्रेसी नहीं बचा है, चल रहा है। फिर देयर इज अ गैप। डिफेंस बजट जो है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं डिफेंस बजट का, ये ओनली सॉफ्ट बैलेंसिंग इज पॉसिबल। मतलब ये यूएस बहुत और चाइना का डिफेंस बजट कंपेयर कर रहा है क्या? हाँ, यूएस का जो डिफेंस बजट है वो 650-700 बिलियन के आसपास है, चाइना का 320 के आसपास है, तो बहुत बड़ा गैप बोल रहा है। मेन बात वो है। करेक्ट, मतलब चाइना अभी भी इतना इक्वल नहीं बना है। सिमिलरली देयर इज अ ह्यूज गैप इन टेक्नोलॉजी, R&D एंड इनोवेशन। देयर इज आल्सो ह्यूज गैप इन सॉफ्ट पावर, assertiveness in South China Sea, न्यू imperialism। तो ये मतलब नेगेटिव, एक चाइना का नेगेटिव व्यू पॉइंट है जो वर्ल्ड नेगेटिव देखता है उनको। सी राजामोहन बोलते हैं चाइना हैज बीन रीपिंग एडवांटेजेस ऑफ यूएसए एज अ ग्लोबल हेजिमन। इट कुड रीप बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल पावर विदाउट हैविंग ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें अपन ने देखा था ना, एक जो हेजिमन बनता है तो उसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। एक तो फ्री राइडर्स वाला इशू आता है, फ्री राइडर। ठीक है, तो चाइना इज स्टिल अ रीजनल पावर, नॉट अ ग्लोबल पावर। Out of $700 a foreign company set up in China makes only $15 remains in China. Thus, made in China is actually made in America. ठीक है, China also lags behind in financial market prowess and IT. World has yet to gain confidence in Chinese legal system. तो चाइना का लीगल सिस्टम भी इतना वर्ल्ड के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है अभी। और लैंग्वेज का भी बोल सकते हैं ना, चाइनीज लैंग्वेज ठीक है लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, बट इंग्लिश इज लाइक हेजिमनी। थोड़ा नीचे लीजिए सर। तो आगे थोड़े से 2 अलग अलग व्यू पॉइंट है कि वॉर होगा या वॉर नहीं होगा। वॉर होगा ऐसा बोलने वाले भाई ग्राम एलिसन है, थ्री साइडेड सपोर्ट करेंगे। ये सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बोलते हैं ना, कोर कॉन्फ्लिक्ट है। वॉर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकोनॉमिक एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। सोशल कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे कि भाई डायलॉग बिटवीन द सिविलाइजेशंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इस पे डिस्कशन हो रहा है, तो कोऑपरेट भी कर रहे हैं मतलब चाइना और यूएसए, तो वॉर नहीं होगा। अच्छा, बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट चैलेंज ऑफ ब्रिक्स, डज एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग अबाउट यूएस चाइना या फिर राइज ऑफ चाइना एंड डिक्लाइन ऑफ यूएसए? हाँ सर, बस एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा। ठीक है, ये बात है बजट का गैप वाला, ठीक है, बट वही है कि जो हेजमन बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट 2 क्राइटेरिया होते हैं ना, एक तो आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा विलिंगनेस, और तीसरा होता है कि लोग आपकी बात को सुने। तो ये जो लीगल सिस्टम वाला बात है वो तो बहुत पीछे है इधर तो चाइना। नो डाउट दे हैव कैपेबिलिटी है, विलिंगनेस है, बट वो रिकॉग्निशन वाला नहीं है, थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। तो स्टिल दे आर वे बियॉन्ड, मेन बात वही है। ओके सर, एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू ऐड? तुम्हारे नोट्स में कुछ अलग लिखा है किसी के? गार्गोन सर, स्टोइक, इजराइल, चले आगे। सबके नोट्स का सोर्स एक ही है यार, क्या अलग मिलेगा? चलो ठीक है, तो अगला चैलेंज है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इज इट अ चैलेंज टू हेजेमनी? इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहले तो जिम ओ नील है, ही इज अ गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट। उन्होंने पहले टर्म कॉइन किया था BRIC 2001 में, सरपास G7 इकोनॉमीज बाय 2050, मतलब उस टाइम में बोला था कि इट विल सरपास। 2008 में GEC क्या ये पता नहीं, 2009 में फर्स्ट समिट हुआ, 2010 में सेकंड समिट हुआ, उसमें साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया। ठीक है, तो एजेंडा इनका क्या होता है ब्रिक्स का कि रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ऑर्डर, साउथ साउथ कोऑपरेशन करना है अफ्रीका लैटिन अमेरिका में, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स पे डिस्कशन करते हैं, ओपिनियन ऑन ईरान, न्यूक्लियर क्राइसिस, सीरिया वगैरह पे। शशि थरूर बोलते हैं एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्लोबल ऑर्डर फोर्स दिस कंट्रीज टू कम, थोड़ा नीचे लीजिए सर। हाँ, शशि थरूर बोलते हैं कि एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्लोबल ऑर्डर फोर्स दिस कंट्रीज टू कम टुगेदर। तो पोटेंशियल बहुत है ब्रिक्स में, नेचुरल रिसोर्सेस है, स्किल्ड मैन पावर है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन
एंड 22% ऑफ जीडीपी। अब ये पुराना होगा मोस्ट प्रोबेबली। इंटर ब्रिक्स ट्रेड भी है काफी। फरीद जकारिया ने बोला है कि भाई डिक्लाइन वेस्ट हो रहा है, राइज ऑफ रेस्ट हो रहा है, तो वही ब्रिक्स का राइज हो रहा है। मतलब डोकलाम इशू रिजॉल्व पता नहीं। तो मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत है इसमें। एनडीबी बनाया इन्होंने, कंटिजेंसी फंड बनाया है, रेटिंग एजेंसी बना रहे हैं लोग। थोड़ा ऊपर जाइए सर। अभी मतलब ये बेसिक्स था सारा ब्रिक्स के बारे में। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस ये है ना कि इट्स नॉट गुड बिकॉज जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन आ रहा है। टेररिज्म के ऊपर इंडिया इज नॉट सपोर्टेड बाय चाइना एंड रशिया। चाइना एंड रशिया इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया चाहते हैं। तो मतलब सेंट्रल एशिया पे इन्फ्लुएंस के बारे में भी कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं बन पाया सब में। इंडिया चाइना में हॉस्टिलिटीज चल रहे थे, अपन देखा डोकलाम वगैरह, गलवान वैली। फिर ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका आर प्रो चाइना। ठीक है, तो इंडिया को मतलब एंटी चाइना बन रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है। सुहासिनी हैदर बोलती है चाइनाज प्लान्स ऑफ ब्रिक्स प्लस इंक्लूडिंग पाकिस्तान, मेक्सिको एंड श्रीलंका विल नॉट ऑगर वेल विथ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना ये चीज कि सुहासिनी हैदर का स्टेटमेंट है चाइनाज प्लान्स ऑफ ब्रिक्स प्लस विथ पाकिस्तान, मेक्सिको एंड श्रीलंका विल नॉट ऑगर वेल विथ इंडिया। तो एक और ये भी इशू है ना कि जो एससीओ है या फिर ब्रिक्स है, इसको चाइना अलग तरीके से देखता है। चाइना एंड रशिया लुक्स एट इट एज अ काउंटर बैलेंसर टू वेस्ट, वेयर इंडिया वैसे नहीं देखता है इसको। अभी रिसेंटली ईरान किसी में तो मेंबर बनाया, शायद एससीओ का बनाया क्या? हाँ एससीओ का बना हूँ। ओके, और कौन बनाया? एक ही थे क्या? हाँ ईरान ही बनाया मैंने, मतलब फुल टाइम मेंबर तो वही बनाया। ठीक है सर, तो आगे देखते हैं फिर। लेकिन अब क्या है कि पार्टी इज ओवर नाउ। क्यों? बिकॉज साउथ अफ्रीका इज फेसिंग क्राइसिस। हाँ सर बोलिए। सर आई थिंक एससीओ में कोई डायलॉग पार्टनर भी बना है नया। आई मीन पहले शायद नहीं था और अब एसोसिएट या डायलॉग पार्टनर ऐसा कुछ बना है। शायद सऊदी अरेबिया एक हो सकता सर है। आप एक बार चेक करके बताइएगा एक बार, है ना? ठीक है, तो पार्टी इज ओवर में क्या बोल रहे हैं कि रशिया एंड ब्राजील आर इन रिसेशन नाउ, साउथ अफ्रीका इज फेसिंग क्राइसिस, चाइनीज इकोनॉमी का जो ये ग्रोथ था ना बहुत ज्यादा, ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अब वो कम हो गया है, स्लोइंग डाउन हो रहा है। इंडिया इज द ओनली स्वीट स्पॉट। एक कीवर्ड है मॉन्टले काउ, मतलब देयर इज नो कॉन्क्रीट एजेंडा टू चेंज ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। चाइना इज यूजिंग ब्रिक्स टू सॉफ्ट बैलेंस यूएसए। M.K. नारायणन बोलते हैं ब्रिक्स हैज लॉन्ग सिंस सीज्ड टू बी ऑफ एनी मटेरियल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो सुहासिनी के हैदर के व्यूज देख लिया अपन ने कि चाइना का ब्रिक्स प्लस वाला प्लान इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, एंड M.K. नारायण के भी व्यूज देख लिए ब्रिक्स के बारे में। थोड़ा नीचे लीजिए सर, सत्यम सर। ये ब्रिक्स कंट्रीज का वोट क्या था अभी रिसेंटली जो ये हुआ यूएनएससी में जो वोटिंग हुआ, जनरल असेंबली में भी जो वोटिंग हुआ? आई थिंक ब्राजील, चाइना ने एब्सटेन किया साउथ अफ्रीका यूएस के साथ गए, राइट? आई एम नॉट श्योर सर, एक बार गूगल सर्च कर लेंगे कोई। हाँ, क्योंकि आई गेस कि साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील दे वेंट विथ यूएस एंड हम लोग बाकी इंडिया चाइना ने एब्सटेन किया है। तो यहाँ पे भी एक फॉल्ट लाइन दिख जाता है ब्रिक्स में। करेक्ट सर, करेक्ट, थैंक यू, नाइस पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नो डिस्कशन अबाउट ग्लोबल इवेंट्स इन Xiamen summit. China sees little use of BRICS in its geopolitical and geo-economic objectives. BRICS cannot challenge US hegemony. क्यों? Because solidarity नहीं है, disjoint group है एक, economic interdependence is more on the west rather than more than each other. मतलब आपस में ही ट्रेड नहीं करते हैं, ज्यादा वेस्ट से करते हैं। डिफिकल्टी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि ब्रिक्स लैक्स मोर्टार विच कैन बाइंड देम टुगेदर। पीएम मोदी ने इसलिए बोला है कि वी नीड टू बिल्ड ब्रिक बाय ब्रिक, टू अर्ली टू से डाइवोर्स ऑन कार्ड्स।
सी राजा मोहन बोलते हैं फॉर इंडिया ब्रिक्स इज लेस अबाउट आइडियोलॉजिकल पोस्चरिंग एंड मोर अबाउट रीपोजिशनिंग इटसेल्फ इन चेंजिंग ग्रेट पावर इक्वेशंस। समीर सरन बोलते हैं कि बीइंग इन ब्रिक्स रिक्वायर्स इंडिया टू बी मोर निम्बल फुटेड। ठीक है, दैट्स ऑल ब्रिक्स के बारे में। थोड़ा नीचे ले लीजिए, फिर एक बार समराइज करना है इसको सर। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन करूंगा जो वोटिंग वाला है ना, तो इसमें यही सीन है यार कि किसी ने नहीं किया है, मतलब ये रशिया ने तो खुद क्या इन फेवर में किया है, इंडो चाइना ने अब्सटेन किया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने भी अब्सटेन किया है, ब्राजील ने फेवर में किया है यूएस के। तो ऐसा नहीं है जो सर बोल रहे थे। 5 लोगों ने ही नहीं, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज था। आई थिंक सिर्फ ब्राजील गया है साथ में और साउथ अफ्रीका ने एब्सटेन किया। ब्राजील भी नहीं गया रशिया के साथ। रशिया के साथ में 4-5 कंट्री में नाम बोल देता हूँ, सीरिया, कोरिया, बेलारूस, इरिट्रिया और रशिया खुद, ये 5 कंट्री जिसने फेवर में किया है। नहीं, अगर आप एब्सटेन भी करते हो ना तो भी आप रशिया के साइड हो, ये एक दिखाया जाता है। तो ऐसे तो इंडिया ने किया है, ठीक है, ब्राजील ने यूएस के फेवर में किया, बाकी लोगों ने अब्सटेन किया, मेन बात। हाँ, तो इवन अरे एब्सटेन ठीक है, करना ठीक भी है, एक आप ये बताते हो साइड किसके साइड हो। ठीक है सर, ठीक है। तो आगे चलते थोड़ा सा है ना। थोड़ा सर नीचे ले लेंगे, थोड़ा सा एक दो चार और टॉपिक्स कर लेते हैं ना इसको। तो 10 ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ था, ये आई डोंट थिंक कुछ काम का है, आगे ले लो, थोड़ा सा छोड़ दो इसको। हाँ, मल्टीपोलैरिटी अच्छी है या खराब है? तो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट लाइक मेरशाइमर सेज instability in multipolar world or multipolar order, back to future scenario to World War I, World War II. USA China will ensure greater stability. Hegemonic stability theory which will lead China to bandwagon rather than balance. Liberals क्या बोलते हैं इसके बारे में, मल्टीपोलैरिटी के बारे में? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विल प्रिवेंट वॉर, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होगा, कंडीशंस फॉर बैलेंस ऑफ पावर आर नॉट देयर. USA has been moving to multilateralism, showing greater accommodation to other powers. ठीक है, तो ये थे मल्टीपोलैरिटी के बारे में व्यूज थे मेरशाइमर के, लिबरल्स के. अमेरिका फर्स्ट, ट्रम्प का ये था, आई थिंक ये हो गया, वैसे नीचे ले लो. प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है यूएसए. ठीक है यार, आई थिंक यहाँ पे खत्म करते हैं आज के लिए, ये कल करेंगे बाकी. नाम का ही है ना आगे, बांडुंग प्रिंसिपल वगैरह. हाँ, आई थिंक कल करना चाहिए बाकी का. ओके, किसी को कुछ ऐड करना है आज के टॉपिक्स के बारे में ओवरऑल? एनीथिंग, एनी अदर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन यू गाइस वांट टू मेक फ्रॉम योर नोट्स? मेरे पास 2-3 स्कॉलर का स्टेटमेंट है. फरीद ज़कारिया एक में बोलते हैं कि सजेस्ट दैट वी आर लिविंग अ पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड. फिर समीर सर ने एक और जगह पे बोला था कि ब्रिक्स कैन गो फॉर सॉफ्ट बैलेंसिंग अगेंस्ट यूएसए, बट बिफोर अचीविंग such ability it has to create new institutions that can help in consolidation of their alliance. जो आपने nimble footed बोला था ना सर, उसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं एक. ओके, थैंक यू. और एक और सर ये एक और स्टेटमेंट है, मैं हाँ बोलो ग्रुप बोलो. में डाल दूंगी. ओके वही मैम, है थैंक कि यू. यूएसए इज ग्रेट गैम्बलर वाला, कि चिप्स देन एनी अदर प्लेयर का स्टेटमेंट है एक. आप बोल दीजिए ना, यू कैन अच्छा टेल द फुल ठीक है. स्टेटमेंट. BRICS lack the soft power of USA, and USA is great gambler, which can play simultaneously at many tables and has more chips than any other player. ओके, ठीक है, थैंक यू मैम. Ma'am, can you copy paste these lines in the group chat? मैं कर दूंगी कॉपी. अच्छा, एक बुक का नाम याद रख लो, फरीद ज़कारिया का एक रिसेंट बुक है 10 लेसन्स फॉर द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. तो ये बुक भी अपन कहीं कोट कर सकते हैं, एंड इफ पॉसिबल इसका समरी लेके कोई निकाल दो और ग्रुप में डाल देना बाद में.
और एक और काफी इंटरेस्टिंग लाइन याद आ रहा है, मतलब ऐसा कोई स्कॉलरली तो याद नहीं है, बट इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेनू, मतलब कंट्रीज के लिए बोलते हैं नॉर्मली, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा लाइन है। एनीथिंग एल्स गाइस, एनीबॉडी वांट्स टू ऐड या फिर वाइंड अप करें? एक और रेफरेंस स्टेटमेंट है, इट इज बेटर यू शुड बी इन द ड्राइंग, जस्ट अ सेकंड मम्मी 2 मिनट माँ, इट इज बेटर यू शुड बी इन द ड्राइंग रूम रेदर देन बी इन द लिविंग रूम। यानी कि जैसे यूएसए भागता रहता है ना इंस्टीट्यूशन से, तो आई गेस दशरथ सर मुझे बताया था इसके बारे में। ये लिविंग रूम की जगह वेटिंग रूम है सर, और एस जयशंकर का स्टेटमेंट है ये। हाँ, एस जयशंकर का ना वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम। वी शुड बी एक बार इन फिर से बोल दो अच्छे से। इट इज बेटर दैट वी शुड बी इन द ड्राइंग रूम रेदर देन द वेटिंग रूम। करेक्ट, ये जयशंकर, एस जयशंकर सर बोल रहे हैं, बढ़िया स्टेटमेंट है भी। ये किसी कंटेक्स्ट में बोला था, वो कंटेक्स्ट याद है पुतिन सर आपको? अब यार बताए तो दशरथ सर थे, मैं फिर भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक ग्रुप में है ट्रांसलेट। दृष्टिंत सर, आपका ये आर्ग्यूमेंट था ना, इफ यू आर ऑन टेबल देन यू आर ऑन, ऐसा कुछ था, वो स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए सर बेसिकली ये है ना कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल, सॉरी हाँ, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। जो सर ने स्टेटमेंट बताया ना आपने अभी, सिमिलर ही है वो, मतलब कि अगर तुम टेबल पे डिनर करने के लिए नहीं हो सबके साथ में, तो तुम मेनू हो, मतलब तुम पे तुमको खाया जा रहा है बाकी लोग मिलके, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में है ये। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस जो अपन ने डिस्कस किया, यूएस हेजीमनी डिक्लाइन या ये चाइना ब्रिक्स चैलेंज, एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स टू ऐड या वाइंड अप करें? Okay, all right then, thank you very much everyone who all participated and gave your valuable inputs. And for those who are watching on YouTube, if you like these videos, please like, share and subscribe to our channel. Thank you guys.